Good morning, custodians. Today we are going to discuss our chapter first, chemical reaction and equation, and the subtopic is balancing of a chemical equation. The topic is balancing of chemical equation, and what is chemical equation and how to balance it and why it is necessary. So before discussing our topic chemical equation, I just want to recap my topic, that is chemical reaction. What is chemical reaction? Chemical reaction is just a chemical change. When you apply any chemical change to the initial compounds, it is known as chemical reaction. When you apply any chemical change to your initial compounds, when you apply any chemical change to your initial compounds, and there will be changes, and there comes out to be a change in the nature and identity of that initial compounds when it's converted into a final compounds. It means the nature and identity of both of these compounds. Nature and identity of both of these compounds must be different. Then it is known as the chemical reaction. For example, you have beaker, and in a beaker you have about 100 ml of water. In 100 ml of water, if you add sugar, then its taste gets changed. Taste get changed. Moreover, its density also gets changed. Moreover, its concentrations also gets changed. Now, you came to know that in a chemical reaction, in other words, you can say that a chemical reaction, it is a process in which one or more substance gets converted into another substance, and this is known as the chemical reaction. There is a substance that is reactant, and these reactants, when convert into another substance, that will be known as the product. It means your initial compound is reactant and your final compound is your product, and you have to apply some chemical change here, and you have to apply some chemical changes to your reactant to convert into the product, and that process is known as the chemical reaction. Now, there is a representation way of chemical reaction. How will you represent? How will you write a chemical reactions in your notebook? To write a chemical reaction in your notebook, you have to represent a chemical reaction anywhere. You have to give a brief introduction of that reaction. You have to give the brief introduction of that reaction. Brief introduction means actually what things is actually happening. The things that is actually happening is known as the representation of chemical reaction. For example, representation of a chemical reaction of activity 1.1. Recall activity 1.1. What we have done in the 1.1. In the activity 1.1, we have burned the magnesium ribbon. So the representation of activity 1.1, we can write this as burning of magnesium ribbon. Burning of magnesium ribbon in the presence of oxygen. In the presence of oxygen. This is the correct way. How will you represent, how will you write chemical reaction for the activity 1.1? This is the correct way. It means in the chemical reaction, to write a chemical reaction, you have to give the brief introduction of that event. You have to give the brief introduction of that event or that experiment or that process. That is known as the chemical reaction. This is all about the chemical reaction. You have to give the brief introduction of your event. Brief introduction of your event is known as the chemical reaction. And what is the chemical equation? Chemical equation is just a symbolic representation of chemical reaction. It means, for example, you have write a chemical reaction. You give the brief introduction of your experiment, like burning of magnesium ribbon in the presence of oxygen. But scientists
but the scientist या फिर scientific language, in the scientific language we have to write this event in a short form. हमें इस जो इवेंट है, इस केमिकल रिएक्शन को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है. अब केमिकल इक्वेशन ही उसका एक शॉर्ट फॉर्म है. तो साइंटिस्ट ने क्या कि एक डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए, एलिमेंट्स के लिए कुछ सिंबल्स दिए हैं. तो वो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन करना केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन को जैसे कि आप तो एक सिंबल की फॉर्म में राइट डाउन कर रहे हो, तो वो आपका क्या है कि केमिकल इक्वेशन कहलाता है. इट्स नोन एज केमिकल इक्वेशन. ठीक है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल जो आपकी रिएक्शन है, ये जो इवेंट है, आपने इसी चीज को एक सिंबल की फॉर्म में लिखा है, तो ये आपका क्या है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है. नाउ व्हाट इज वर्ड इक्वेशन? देखो वर्ड इक्वेशन में क्या है कि जब आप इसी सिंबल्स को, आप इस केमिकल इक्वेशन को जब आप सिंबल यानी वर्ड की फॉर्म में लिख देते हैं, राइट डाउन कर देते हैं, जैसे मैग्नीशियम. मैग्नीशियम अब पूरा एक वर्ड है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन and here burning, you have to use only word. In the word equation you have to use only word. It will form magnesium oxide. What it form? It will form magnesium oxide. So this is a simple introduction of a brief introduction of the chemical reaction, chemical equation and word equation. I hope you get it. Now the main topic comes here. What is balanced chemical equation? Let us recall a activity, या फिर let us recall a topic that you read in the 9th class. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. आपको पता है कि जब भी कोई रिएक्शन है प्रोसीड करती है, तो उसमें जो मास है वो ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो, अगर क्या कि आपने रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट पे प्रोसीड करते हैं, आपने कोई रिएक्टेंट, आपने उसमें कोई केमिकल चेंजेस अप्लाई किया, आपने उसको बर्न किया, आप प्रोडक्ट तक गए हैं. तो देखो, अगर रिएक्टेंट है उसका क्या है कि मास अगर 10 है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा टोटल, उसका मास भी 10 ही होना चाहिए. यही है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट. इट मीन्स क्या कि जो टोटल मास है एलिमेंट का प्रेजेंट है इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी डन इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट. यानी कि जो रिएक्टेंट का टोटल मास है वो इक्वल होना चाहिए किसके? मास के, प्रोडक्ट के. जो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास वो इक्वल होना चाहिए. अब मास इक्वल कैसे होगा? वो इक्वल कर सकते हैं हम एटम के अकॉर्डिंग. तो इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम, जो नंबर ऑफ एटम अगर वो आपके पास इक्वल बन जाते हैं, इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, हेंस वी नीड टू बैलेंस द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. देखो क्या कि अब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या है, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे. एक आप डिफरेंस समझो पहले कि एक अनबैलेंस और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस आ जाता है. जैसे आपने क्या की रिएक्शन लिखी है, ये हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन प्लस Cl2 के लिए आपने HCl का फॉर्मेशन किया, राइट. अभी यहाँ पे देखो, आपके पास क्या है कि हाइड्रोजन के दो एटम प्रेजेंट है, एक एटम ये, एक एटम ये. क्लोरीन के कितने? दो एटम प्रेजेंट है, Cl Cl2 H2 प्लस Cl2, राइट. तो दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन. फॉर्मेशन किसका चीज का हुआ? HCl, एक H और एक Cl. अभी देखो, अगर हम इक्वल इसको वेट करते हैं तो वेट हमें किसका ज्यादा है? यहाँ पे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और दो ही क्लोरीन है. यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है. तो ये क्या है? अनबैलेंस है. क्या ये अनबैलेंस दिख रहा है आपको? रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं? 2. क्लोरीन कितने हैं? 2. प्रोडक्ट्स कितने हैं? 1 और 1. प्रोडक्ट में हाइड्रोजन भी 1, क्लोरीन भी 1. तो क्या ये अनबैलेंस इक्वेशन? अब हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपल. यहाँ पे जो पार्ट था, अगर हम जो ये वाला प्रोडक्ट का पार्ट था, अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता था, देखो हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या है? 2 है, क्लोरीन भी 2 है. अब यहाँ पे ये देखो 1 हाइड्रोजन था तो 1 क्लोरीन था, मैंने इसको कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 हाइड्रोजन हुए और 2 क्लोरीन हुए. देखो ये है. अब क्या हो चुका है? ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो चुका है. यानी कि अब आपको करना क्या? यू जस्ट हैव टू मेंटेन दैट, या फिर टू रिमेंबर दैट योर एटम, योर नंबर ऑफ एटम on the both side must be equal. Maybe on the reactant side and on the product side, the number of atom must be equal to make a balanced chemical equation. Here now hydrogen is 2, chlorine is 2, and on the product side hydrogen is also 2 and chlorine is also 2. So this is the balanced chemical equation and this is unbalanced chemical equation. I hope you have cleared this topic also. Now let us take example of a unbalanced equation. Let us try to balance the following chemical equation. आपके पास देखो ये केमिकल इक्वेशन है, ठीक है.
अब केमिकल इक्वेशन देखो, अगर क्या कि बैलेंस नहीं है, अगर बैलेंस नहीं है तो हम इसको स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन है जो अनबैलेंस है, आप अनबैलेंस को स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस राइट डाउन कर सकते हो, बोल सकते हो आप इस चीज को। तो आपके पास ये एक सिंपल बेसिक केमिकल इक्वेशन है जो कि अभी बैलेंस नहीं है। तो स्टेप वाइज हम फॉलो करते हैं। टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। देखो अब आपके पास क्या की रिएक्शंस थी, Fe plus H2O, it gives you Fe3O4 plus H2। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आपको जो एटम्स है उसको इक्वल करना है, राइट। यू मस्ट हैव टू इक्वल योर नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ ऑफ द साइड्स। एंड इन द स्टेप फर्स्ट just remember that you does not have to do any changes here. You just close your compounds or element into a box, and you don't have to do any changes in the internal side of your box. आपको क्या है कि जो इंटरनल बॉक्स है उसमें कोई भी चेंजेस अप्लाई नहीं करना है। यानी जो आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो आपको सिर्फ इस बॉक्स के बाहर ही मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब जैसे यहाँ पे Fe3 है, Fe क्या है कि आयरन है। अब आयरन के आइटम यहाँ पे राइट हैंड साइड में कितने आपके पास, 3, और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1। तो आप यहाँ पे सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ ऐसे नहीं करना है, तो ये आपका रोंग हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे आपको यहाँ ही मल्टीप्लाई करना, आगे ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम क्या कि जो एटम्स को इक्वल करने के लिए हम फ्रंट में मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमें चार्ज को इक्वल करना होता है तो हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में ही या फिर सुपर सबस्क्रिप्ट में हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो आपको ये चीज याद रखनी है, रिमेंबर रखना है। तो आपको जब भी आप किसी चीज को क्या कि एटम्स को अगर आप बैलेंस करते हो तो आप फ्रंट में मल्टीप्लाई करोगे, ना कि बैक साइड में या फिर बॉक्स के अंदर आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, राइट। उसके बाद देखते हैं कि अब जो स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड में क्या है कि लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब जो अनबैलेंस इक्वेशन में सिर्फ आपको क्या लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एटम की एक लिस्ट प्रिपेयर करना है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपके पास कितने एटम्स है और राइट हैंड साइड में आपके पास कितने एटम्स है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। देखो सबसे पहले आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या इक्वेशंस में यूज है, एक तो आयरन यूज है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन यूज है एंड ऑक्सीजन यूज है। तो Fe जो आयरन एटम है वो कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, 1, राइट। कितना है, 1। Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। यहाँ देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां आयरन कितना है, सिर्फ 1, राइट। And the number of hydrogen atom on the left hand side, it's 2. There are 2 H atoms, right? There are 2 H atoms, H plus H, H2. So there are 2 H atoms. And oxygen atom, number of oxygen atom is 1. And on the right hand side, iron is 3, Fe3. So there are 3 iron atoms. And hydrogens are 2. And oxygens are 4. So this is your step second. First, what we have to do? We have to box our elements or compounds like this. And then in the step second, we have to count our left hand side and right hand side number of atoms like this and write down this in a row and column in a table, right? So this is the step second to balancing a chemical equation. Let us do our step third. It is often convenient to start balancing with the compound that contain the maximum number of atoms. देखो क्या कि आपको जो बैलेंस करना है इक्वेशन, आप वहां से बैलेंस करना स्टार्ट कर सकते हो जहां पे आपको लगता है कि भाई नंबर ऑफ एटम क्या कि ज्यादा है। जैसे एक केस लेते हैं, अभी इसी चीज का केस लेते हैं। यहाँ पे क्या कि Fe था, Fa प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। देखो यहाँ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1। यहाँ आयरन कितना है, 1। यहाँ आयरन कितना है राइट हैंड साइड में, 3। तो सबसे ज्यादा जो अनबैलेंस कौन है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अनबैलेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन देखो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। तो पहले हम ऑक्सीजन है उसको बैलेंस करने गए। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको देखो 1 है तो 1 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट।
तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, Fe प्लस 4H2O, राइट, Fe3O4 प्लस H2। तो यही था आपका कि स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में आपने क्या करना है, जो भी नंबर ऑफ एटम ज्यादा अनबैलेंस है तो पहले आपने उसको बैलेंस करना है, राइट। अब चलते हैं हम अपने स्टेप फोर्थ की तरफ। तो स्टेप फोर्थ में हम ऑलरेडी इतने आ चुके हैं, Fe प्लस 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, Fe3O4 प्लस H2। उसके बाद Fe एंड H एटम्स आर नॉट स्टिल बैलेंस। अब देखो क्या कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका है, लेकिन जो आयरन है Fe है और हाइड्रोजन है, अब वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब देखो आयरन है, आयरन के यहाँ पे कितने हैं 3, और यहाँ आयरन कितना है 1, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है अब 8 हो चुका है, ये 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, तो अब ज्यादा कौन है 8, 8 वाला अनबैलेंस है। तो पहले हाइड्रोजन को ही हम बैलेंस कर लेते हैं। देखो हाइड्रोजन का है कि जो नंबर है वो एक साइड 8 है और एक साइड हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो आपने इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो हमने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, किससे 4 से मल्टीप्लाई हुआ। तो अब मेरे पास क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो भी बैलेंस है और जो हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस है। अब सिर्फ बचता क्या है आयरन। अब आयरन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो आयरन मेरे पास यहाँ पे कितना है 3 है और यहाँ पे आयरन कितना है 1 है। तो जो स्टेप 5 है उसमें हम क्या करेंगे, आयरन को मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट which is not balanced, you will find that only one element is left to be balanced। सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है जो बैलेंस नहीं है, वो कौन है आपका आयरन। तो अब आयरन को हम बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ कितना है 3 है, तो 1 और 3 को इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी क्या है यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, ठीक है। तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जो ओवरऑल रिजल्ट हमें मिला है वो इक्वेशंस में क्या मिला है, 3Fe प्लस 4 ऑफ H2O, then Fe3O4 plus 4 of H2। So this is your overall balanced chemical equation, right? Now in last step, that is seventh step, let's do this step also. We have to do only the writing the symbols of the physical state. For example, you have iron, and iron is present in here in the solid state. So just you have to, for the solid state, you have to write S in the bracket of iron, 3FeS. You have to mention the state of every element or every compound in a balanced chemical equation. Now अब आपके पास क्या है, यहाँ पे H2 है, वाटर है, वाटर किस फॉर्म में है, वाटर यहाँ पे है अगर गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, यानी स्टीम की फॉर्म में। जो आयरन है, आयरन है अगर क्या है कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब वाटर का टेम्परेचर हाई है, यानी वाटर की प्रेजेंस में है, गैस की प्रेजेंस में है, ठीक है, तो क्या कि वो आयरन है वाटर के साथ क्या है कि रिएक्ट कर जाता है, अगर क्या है कि वो वाटर है अगर गैसियस फॉर्म में है। तो लिक्विड फॉर्म में है जो वाटर, तो उसके साथ आयरन रिएक्ट नहीं करता, वो क्या है स्टीम की फॉर्म में ही होना चाहिए, राइट, वो स्टीम की फॉर्म में होना चाहिए तभी वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो 3 ऑफ Fe प्लस 4 ऑफ H2। अब वाटर है तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, गैसियस फॉर्म यानी कि G, ठीक है। अगर वो लिक्विड फॉर्म में होता तो हम क्या यूज करते हैं L, ठीक है। और अगर कोई सोल्ट है, डिजोल्व है किसी वाटर में, तो हम उसके लिए यूज करते हैं एक्वस, राइट। तो अभी उसके बाद क्या है, Fe3O4 है, ये भी मेरा क्या है सॉलिड बना है, आयरन ऑक्साइड्स, तो S लिखेंगे इसके लिए भी, और जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में, गैसेज है, तो G लिखेंगे। तो ये जो मेरा है मेंशन है, जो लास्ट इक्वेशन है वो एक प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और एक पूरी एग्जैक्टली फॉर्म में है, ठीक है। जो लास्ट स्टेप है वो सिर्फ लास्ट स्टेप में हम ये मेंशन कर सकते हैं इसमें कि जो कंडीशंस है, जैसे हमने हीटिंग की कंडीशन दी है, वो हीटिंग के लिए हम डेल यूज कर सकते हैं, जो एरो का सिंबल्स है यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Fe प्लस 4 ऑफ H2O, अगर हमने क्या कि जो वाटर है उसको ऑलरेडी क्या कि गैसेस फॉर्म में लिख दिया है, तो हम यहाँ पे हीट का सिंबल है वो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया कि दिस इज इन द गैसेस फॉर्म। दिस इज द, सो दिस इज द करेक्ट वे टू राइट डाउन योर बैलेंसिंग, योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट। Here is your Fe3O4 plus 4 of H2. This is the right balanced chemical equation. Now the number of atoms on both of the sides are equal. There are 3 Fe iron atoms are balanced on both the sides, that is 3 and 3, and oxygens are also balanced. Oxygens are here 4 and here also 4, and number of hydrogen atoms are also equal, here 8 and here also 8.
सो दिस इज द बैलेंस, करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यही आपकी क्या की करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आपको सिर्फ क्या है कि जो पहले जो ज्यादा नंबर ऑफ एटम, ऐसे नंबर ऑफ एटम आपको चूज करना है जो कि क्या है ज्यादा ही अनबैलेंस है, तो पहले आप उसको बैलेंस करोगे, उसके बाद हम स्टेप वाइज चलेंगे। तो क्या कि क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमें ये सोल्व क्लियर हुआ है टॉपिक या नहीं हुआ है, राइट। बैक एक्सरसाइज में ऑलरेडी क्या कि कुछ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, आप वो खुद से ट्राई कर सकते हो। सो फर्स्ट इक्वेशन है, आप फर्स्ट को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो हाइड्रोजन के लिए हम यूज करेंगे H2, क्लोरीन के लिए हम यूज करेंगे सिंबल Cl2, राइट। उसके बाद आपकी जो फॉर्मेशन हुई है वो है HCl। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ क्लोरीन कितने हैं 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1। तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये भी 2 और ये भी 2। तो 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। सो दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दैट्स सिंपल। इसी की तरह अब हम क्या है कि जो सेकंड इक्वेशन है वो सोल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन में हमें क्या दिया गया है, बैरियम क्लोराइड है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 and this is your barium sulfate, that is BaSO4 and aluminium chloride AlCl3। अब यहाँ इसको बैलेंस करते हैं। देखो अब जो एल्यूमिनियम है यहाँ पे, वो एल्यूमिनियम कितना है 2, यहाँ एल्यूमिनियम कितना है 1, तो सिंपली आप यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। तो एल्यूमिनियम आपका बैलेंस है, एल्यूमिनियम बैलेंस, राइट। अब यहाँ सल्फेट कितना है, जो SO4 है, सल्फेट है जो वो कितने है यहाँ पे 3, और यहाँ सल्फेट कितना है 1, तो आप इन्हें इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, राइट। तो अब आपका सल्फेट भी बैलेंस है, राइट। तो अभी आपका जो कंप्लीट है ये बैलेंस हो चुका है, आपका सल्फेट बैलेंस हो चुका है। यहाँ बैरियम कितना है 3, यहाँ बैरियम कितना है 1, तो आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो बैरियम भी बैलेंस हो चुका है। अब क्लोरीन यहाँ पे कितना है लास्ट, अब आपका बचता है क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे देखो 2 ये है, और ये मल्टीप्लाई किससे है 3 से, तो 3 2 6, तो आपके लिए टोटल क्लोरीन यहाँ पे कितने बन है 6 है। यहाँ आपके लिए टोटल क्लोरीन कितना देखो Cl3 है, और मल्टीप्लाई किससे है 2 से, तो 2 3 6, तो यहाँ भी आपका क्लोरीन कितना है बैलेंस है 6 है, और यहाँ भी 6 है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये आपकी बन गई है। यहाँ पे आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह से आप जो इक्वेशन थर्ड है वो भी आप बैलेंस कर सकते हो। जो इक्वेशन थर्ड है देखो, उस इक्वेशन थर्ड के लिए क्या है कि आपके पास सोडियम है, सोडियम के लिए सिंबल Na, वाटर है H2O, आपका जो फॉर्मेशन हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, दैट इज NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस H2। तो देखते हैं अब इसको बैलेंस करते हैं। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 1, तो टोटल हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 3, और यहाँ हाइड्रोजन टोटल कितने हैं 2, तो ये तो बैलेंस नहीं है। अब सोडियम यहाँ पे कितना है 1, यहाँ सोडियम 1, तो सबसे पहले हम क्या कि हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन वो ज्यादा अनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम तो सिर्फ 1 है। ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना 1 है, तो ये तो बैलेंस है। हमें सिर्फ हाइड्रोजन के लिए को ही बैलेंस करना है, क्योंकि वो ज्यादा अनबैलेंस है, ठीक है। तो अब हम अगर क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे कितना बना ये 2 बन गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे तो 2 हाइड्रोजन, और ये 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी, तो ये 4 हाइड्रोजन हुआ, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हुआ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4, तो अब हाइड्रोजन मेरा बैलेंस है, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, ठीक है। उसके बाद देखो अब ऑक्सीजन कितने हैं, एक यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, तो 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ भी 2 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब सोडियम क्या है कि सोडियम अनबैलेंस है, यहाँ Na2 है 2 ऑफ Na, यानी यहाँ पे जो सोडियम है वो कितने हैं 2 है, और यहाँ पे सोडियम कितना 1 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सोडियम भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, और ऑक्सीजन भी बैलेंस। सो दिस इज द करेक्ट वे हाउ यू कैन अप्लाई ए हीट एंड ट्रायल मेथड to balance your chemical equation. Now you have to do balance these two chemical equation as a homework, right? Try yourself, and if you face any problem then you can ping on me or WhatsApp in the WhatsApp group. Thank you.